Hello students, welcome to BLLB 4th semester. I am Dr. Neelam Pandey from Indraprasth Law College, Greater Noida. Students, we have been already read ancient and medieval Indian history in BALLB first semester. Now in BALLB 4th semester, we will read modern history. So let's start our first unit, and the topic are problems of Indian society during 19th 20th century and Renaissance. Problems of Indian society during 19th 20th century. Students, Indian society during the 19th century was divided along gender and caste lines. Women were not allowed to study and were married off while they were very young. Widows could not remarry. Women did not have to inherit property. Their social position was very low and they were dependent on the men folk in their family. Caste restrictions were also very strict. The upper caste people stayed away from people of the lower castes. The main social evils during 19th centuries were, स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो बहुत सारे जेंडर्स एंड कास्ट लाइंस में डिवाइडेड थी. औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत कम एज में उनकी शादियां हो जाती थी. अगर वो विडो हो जाती है तो वो विडो को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था. वुमेन्स को प्रॉपर्टी में राइट नहीं था. उनकी सोशल पोजीशन काफ़ी लो थी. वो अपने फैमिली के कृपा रहमो करम पर डिपेंडेंसी उनकी थी. इसके अलावा समाज में जाति प्रथा भी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई थी. अपर कास्ट के पीपुल लोअर कास्ट के पीपुल के साथ उठना बैठना उनका नहीं होता था. वो उनके हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते थे. उनके कुएं अलग हुआ करते थे. वो गांव के बाहर रहा करते थे. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स थे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. द मेन सोशल इवल्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वेयर sati system. The custom of sati was the most barbaric social evil of the time. In this, a widow was burned alive on the funeral pyre of her husband. The pitiable condition of widow, lack of education among girls, child marriage, female infanticide, that is the practice of killing a girl soon after birth. Polygamy, that is the practice of having more than one wife, and पर्दा सिस्टम. सती सिस्टम सोसाइटी में जोर शोर से प्रचलित था. उस वक्त पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था. विडो की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पिटेबल थी. एजुकेशन लड़कियों को नहीं दी जाती थी. बचपन में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी. अगर बच्चियों का जन्म हुआ, लड़कियों का जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उनकी हत्या कर दी जाती थी. बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी. एक आदमी एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता था. एंड समाज में प्रदा सिस्टम भी प्रचलित हो चुका था. तो इस तरह से हम देखते हैं कि औरतों की कंडीशन जो है 19th सेंचुरी में बहुत ही अधिक पुअर थी. Renaissance. The Indian Renaissance is a remarkable feature of India in the 19th century. By the beginning of the 19th century, Indian culture stood completely demoralized against the Western culture. The educated Indians lost confidence in their own culture and regard Western culture as their idols. They blindly imitated Western race, manners,
literature, thoughts, and everything else which belonged to the West, but at the same time, a new thought came to the minds of the Indians. It inspired the Indians in every walk of their life, society, religion, literature, fine arts, politics, etc. The new thought waved the inspiration and emotions which it created, and its resultant effects have been called the Indian Renaissance. हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया रिनेसेंस के रूप में. 19वीं शताब्दी में रिनेसेंस एक रिमार्केबल फीचर है इंडियन सोसाइटी का. अगर हम 19th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमारे जो कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित अफेक्टेड दिखते हैं. वो अपने कल्चर में, अपने कल्चर को फॉलो करने में, अपने इंडियंस कल्चर को फॉलो करने में उनके अंदर वो डिमोरलाइज्ड हो गए थे वेस्टर्न कल्चर के आगे, कि हमारा कल्चर उनका कल्चर हमारे कल्चर से बहुत अधिक बेहतर है. तो वो हर तरीके से उनकी नकल करते थे, चाहे वो वेस्टर्न कपड़े पहनने में हो, उनके मैनर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लिटरेचर्स को पढ़ रहे हैं. वो हर उस चीज़ की नकल करते थे जो वेस्टर्न से बिलोंग करता था. बट एट द सेम टाइम अ न्यू थॉट केम टू द माइंड्स ऑफ द इंडियंस. लेकिन उसी समय एक नई थॉट इंडियंस के माइंड में आती है जब वो ये एजुकेटेड पर्सन्स इंडियन वेस्टर्न लिटरेचर के टच में आते हैं, वेस्टर्न हिस्ट्री के टच में आते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिक्स के टच में आते हैं. तो उनके दिमाग में एक नई थॉट आती है कि आप लिबर्टी की बात करते हो, आप समानता की बात करते हो, तो यहाँ तो हमें ना लिबर्टी मिली हुई है और ना हमें समान अधिकार मिला हुआ है. तो इस तरीके से उनके दिमाग में, जब आप अपने हिस्ट्री पर, आप अपने इतिहास पर गौरव कर सकते हो, तो हमारा इतिहास भी बहुत ज़्यादा गौरवशाली रह चुका है. अशोक हैं, अकबर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य है. चाणक्य ने पूरे उस वक्त विश्व को राजनीति सिखाई. अशोक जैसा महान कोई सम्राट नहीं हुआ, अकबर जैसा कोई महान सम्राट नहीं हुआ जो पूरे समुदाय, पूरे ग्रुप, पूरे इंडियंस को साथ में लेकर के जो चलता है. तो हमारा इतिहास तो उससे भी ज़्यादा गौरवशाली है, तो हम अपने इतिहास पर क्यों ना गर्व करें. तो इस तरीके से वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लिटरेचर के टच में आकर माइंड्स, इंडियंस के माइंड में भी अपने आप पर वो गौरव करना सीखते हैं. और इससे हमारे इंडियंस की हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ अफेक्टेड हुई. सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिक्स. और नई थॉट्स एक नया इंस्पिरेशन और इमोशन लेकर आई जिसने भारत के हर फील्ड को अफेक्टेड किया, और जो भारतीय रिनेसेंस यानी भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना गया. The Indian Renaissance affected every sphere of Indian life and brought forth significant change. It gave new life and purpose of Indian culture. It was inspired by the Western concept of reason, equality, and liberty. It inspired the Indians to remove the defeats of their culture. The Indians felt that the Indian culture is great and it can grow and can face the challenge of Western culture. The Indian Renaissance affected various spheres of Indian life. इसने भारत के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया और एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर के आया. इंडियन कल्चर को इसने एक नई लाइफ और एक नया पर्पस दिया जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से अफेक्टेड, इंस्पायर्ड था. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. ये किससे इंस्पायर्ड था? तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से. और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या था? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड रीजन. और जिसने ये इंस्पायर्ड किया इंडियंस को कि हमारा कल्चर भी बहुत गौरवशाली है
महान है, लेकिन हमारे कल्चर या रिलीजन में कुछ अगर त्रुटियां आ गई हैं, लाइक सस्ती सिस्टम, बाल विवाह, तो उसको दूर करके हम दोबारा अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. Therefore, they try to revive the glory of the Indian culture, reforms Indian society and religion and bring improvement in every field of life. इस तरीके से जो रिफॉर्मर्स आगे चलकर अभी आएंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उन लोगों ने इंडियन कल्चर से, इंडियन सोसाइटी से, इंडियन रिलीजन से की जो कमियां थी, सोशल प्रॉब्लम्स थे, इविल्स थी, उन सब को दूर करके इंडियन कल्चर को और इंडियन सोसाइटी को और इंडिया को एक नए ग्लोरी में लेकर के आना उन्होंने शुरू किया, जो ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन एवरी, जिसने भारत के हर फील्ड को इम्प्रूव किया, चाहे वो सोशल इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट हो. Dear students, the remaining part of the same topic will be continued in our next video. Thank you.